हेलो माय फैबुलस व्यूअर्स एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। ये नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, यानी कि आप पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हैं। नाउ प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ फॉर द साइन ऑफ पाइसेस एंड प्लीज़ check your sun, moon, rising and Venus. Remember that this is a general reading, so it may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. Please remember this roles can always be reversed. Roles change हो जाते हैं, energies can always shift. This can be your energy or the partner's energy. So now let's start with the sign of Pisces. What is the current feeling? Here I am going to tell you about the current feelings, intentions, what action they are going to take, if any, and give you some advice. What is the current feeling of the partner of Pisces, my love team? Please give me the current feeling of the partner of Pisces, collective, my love team. Let's see what are the current feelings of the partner of Pisces. So yeah, we have got the Two of Wands, we have got the Ace of Cups in the reverse, and we have got the Two of Pentacles. So current situation में Pisces at the bottom of the deck, we have the King of Swords in the reverse, we have got the Moon in the reverse, and we have got the Knight of Pentacles in the reverse. So Pisces, यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कुछ डिसीजन ले लिया है, एंड टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब उन्हें पता है कि लव सिचुएशन आप दोनों के बीच में ख़त्म हो गई है विद द एस ऑफ कप्स इन द रिवर्स. आप लोगों के बीच में इमोशनल अटैचमेंट कोई भी नहीं रहा है, एंड दे हैव टेकन अ डिसीजन टू रिमेन इन सेपरेशन, एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड इन प्लानिंग फॉर देयर फ्यूचर. बिकॉज यू पीपल आर इन नो कॉन्टैक्ट, नॉट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर. द मून इज़ योर कार्ड. उनको कुछ चीज़ें कुछ बातें सामने उनके आ चुकी हैं, and they are no more in this feeling of कि उन्हें आपसे connect करना ज़रूरी है. So they have already taken a decision to plan for their own future, and they don't want to focus on love. This is the current feelings of your partner. Now let's see what are the intentions of the person of the Pisces. What are the intentions of the person of the Pisces, my love team? What are the intentions of the person of the Pisces? Pisces के person के क्या इरादे हैं? Let's see. So yeah, आपके जो person हैं, we have got the Hermit, we have got the two, Four of Swords in the reverse, and the Eight of Swords upright. Bottom of the deck is the Devil, the World. So आपके पार्टनर को लगता है कि ये साइकिल बहुत ही टॉक्सिक है, इसमें बहुत सारी एडिक्शंस है. कुड बी सेक्सुअल एडिक्शन, कंट्रोल इश्यूज, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इस रिश्ते में है, एंड दे आर इन अ काइंड ऑफ मेंटल जेल. वो बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि हाउ टू रिलीज़ यू. एक्चुअली वो नो कॉन्टैक्ट में, इसलिए वो आपको इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये उनके दिमाग से ही नहीं निकल रहा है, और वो इसमें ओवर थिंक किए जा रहे हैं कि वो कैसे इस रिश्ते को क्लोजर दें, एंड दे आर ऑलमोस्ट रेडी टू फॉरगेट दिस रिलेशनशिप. इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, एंड दे आर इन दिस मेंटल जेल टू हाउ टू गेट रेड. या दे वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ देमसेल्व्स. हर्मिट वो दे आर इन आइसोलेशन. उन्होंने काफ़ी सोच विचार किया और बहुत अच्छी तरीके से इस बारे में सोचा. अपने इनर नॉलेज, अपनी सोल सर्चिंग करी, काफ़ी सोचा कि इस रिश्ते में क्या हो सकता है, और बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए. बट वो इस चीज़ को निकालना तो चाहते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है. दे आर नॉट एबल टू डू इट. दे आर नॉट एबल टू put you out of their minds. Now let's see what action they are going to take. What action they are going to take, if any. What a mess. What
action will the person of Pisces take, if any? What action will the person of Pisces take in the next 15 days? What action they are going to take, if any? हो सकता है वो कुछ एक्शन ले और ये भी हो सकता है कि वो कोई एक्शन ना ले. What action they want to take? Okay, we have got the Chariot upright, we have the King of Swords, and we have the Nine of Wands in the reverse. So yeah, and at the bottom of the deck we have got the Death in the reverse, King of Pentacles. So things have ended and changed between you two people, and so far as action is concerned, is like they don't want to fight anymore. They want to move forward and they want to focus on themselves. लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि दे माइट वॉन्ट टू टॉक टू यू. वो एक बार आपसे आखिरी बार शायद बात करना चाहते हो, लॉजिकली, क्लियरली, और विदाउट दे आर इमोशनली डिटैच्ड. वो इस समय बिल्कुल इमोशन से काम नहीं ले रहे हैं. दे आर कूल हेडेड, दे आर इमोशनली डिटैच्ड एंड दे आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड yeah, they want to come towards you. They want to talk. They want to talk for one time. Before moving on, they want to talk to you in a cool and detached manner. बिना किसी लड़ाई झगड़े के वे आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना चाहते हैं. This is what they want. Now let's see what's the advice for you Pisces. The advice is the Three of Pentacles in the reverse, the Six of Swords and the Seven of Pentacles. आपके लिए एडवाइस है कि आप पहले डिस्कनेक्ट करने के पहले डिस्कनेक्ट या करने से पहले आप अच्छी तरीके से इवैल्यूएट कर लें. आप अच्छी तरीके से अपना माइंड मेकअप कर लें कि आप इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, टाइम एनर्जी के नहीं, एंड देन यू टेक योर डिसीजन. बिकॉज यू हैव ऑल्सो गॉट द थ्री ऑफ पेंटिकल्स. आपको पता है कि आप लोगों के बीच में सोच विचार नहीं मिलते हैं, आपका कल्चर अलग हो सकता है, आप लोग सेम पेज पे नहीं हैं. बट बिफोर टेकिंग एक्शन, बिफोर डिस्कनेक्टिंग, बिफोर मूविंग अवे, फर्स्ट एनालाइज, बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज कर ले व्हाट यू वांट, बिकॉज यू आर ऑल्सो नॉट क्लियर व्हाट यू वांट. मे बी यू वांट टू ऑफर देमसेल्फ समथिंग. आप उनको कुछ टैंजिबल ऑफर करना चाहते हैं या वो पर्सन आपको करना चाहता है. सो यू शुड बी वेरी केयरफुल. यू शुड फर्स्ट बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लें कि वेदर यू वांट दिस रिलेशनशिप और नॉट, एंड देन टेक अ डिसीजन इफ़ यू वांट टू डिस्कनेक्ट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कर लें फिर आपको रिग्रेट हो. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू Pisces. होप दिस हेल्प्ड. Please like and subscribe to my channel, and see you next time. Till then, bye bye.